Hello, my little munchkins. How are you all? I hope you all are fine and doing well. So, very good evening to all of you. Uh, I know you all are preparing hard for exams. Alright, so I am here again with the next chapter. So, I will discuss some important questions from this chapter and the concept of simple equation. Okay, and thank you so much for your responses in the previous video. So, keep the love. Okay. Alright, so let's start with this session. Alright, so today's chapter is simple equations. So, as the name suggests, this chapter is also very simple. And before we start, I would like to tell you some keywords. Why? Because these keywords are very necessary in simple equation, because simple equation is just a translation when like you translate from English to Hindi. Similarly, here you have to know the translation from English to equation, from statement to equation. Okay, and for that you must know the meanings of the certain keywords. Okay. So here are some keywords. Let me change the color. Okay. So times, whenever you see times means to multiply. Okay. Like 2 times, 3 times. 2 times means 2 multiplied. 3 times means 3 multiplied by any number or any variable. Okay. Twice means 2 multiplied, that is 2 guna. Okay, twice is 2 guna, double हो जाना. Thrice is 3 times, 3 गुना हो जाना, triple हो जाना. Take away means to subtract. Take away 5 from 10, that means 10 minus 5. Sum means addition. Sum of x and y, that means x plus y. Less than means to subtract. More than means to add. Half means when a number, any number or variable will be divided by 2. Whatever value you have taken, that will be divided by 2 to give you half. Half, then one third, the number or variable will be divided by 3. Like if it is x, so I will divide x by 3, that is, it is known as 1/3 of x. If I divide x by 2, that is half of x. If I divide x by 4, it will be called 1/4 of x. Okay. Now, get, gives, is or was means is equal to. Okay. So I will say, do remember these keywords, and then you will automatically know that what this word or what this word suggests, right? So I hope you all have noted down these keywords and learned the meaning. So let's move ahead and solve some questions. So first question is write equation, and the question is, if you take away 6 from 6 times y, you get 60. So as I told you just now, take away means to subtract. Take away means to subtract from what? From 6 times y, you have to subtract 6. आपको 6 सब्ट्रैक्ट करना है. किससे? 6 टाइम्स y से. 6 टाइम्स का मतलब बताया था मल्टीप्लाई. गेट मीन्स इज इक्वल टू. टेक अवे मीन्स टू सब्ट्रैक्ट. ठीक है, ये मीनिंग आपको पता है. नाउ यू हैव टू जस्ट अरेंज. क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसे पहले लिखते हैं हम.
सो फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, 6 टाइम्स वाई, 6 टाइम्स मतलब 6 मल्टीप्लाइड वाई, तो 6y में हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, टेक अवे 6, इफ यू टेक अवे 6 इसमें से ले लेंगे, यू गेट मीन्स इज इक्वल टू यू गेट 60. ओके, नाउ यू हैव टू राइट इक्वेशन ओनली. सो इक्वेशन अगर लिखना है तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे. बट इफ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, देन व्हाट यू विल डू, you have learned so many methods like trial, hit and trial method, then you have learned balancing method, and then you have learned transposition method, right? So here I will write 6y is equals to, I am solving it by transposition method, 60 plus 6, that is equals to 66, right? So first of all I separated 6 from 6y. Why? Because here I am following the reverse of Bodmer's rule. ये मैं आपको बता रही हूँ कि हम जब अलजेब्रा में या अलजेब्रा या फिर अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम बोडमास रूल को फॉलो करते हैं, बोडमास को फॉलो करते हैं. बट हम जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम जस्ट इसका रिवर्स फॉलो करते हैं. जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है पहले उसको अलग करेंगे, फिर जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में है फिर उसको अलग करेंगे, और फिर हम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे. तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में 6 था, उसको सेपरेट किया, ये इधर आके प्लस हो गया 66. अब मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल के साथ अगेन 6 है. So here I will write y is equals to 66 divided by 6. So y is equals to 11. तो यहाँ पे आप इक्वेशन फॉर्म करना भी सीख गए, और इसको सॉल्व कैसे करना है, by following the reverse of Bodmer's rule, that also you learned. Okay, now let's come to next question. Write statement. Now here you have to write statement, and the question is 3m by 5 is equals to 6. ओके, सो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे पहले मल्टीप्लिकेशन से. ओके, या हम डिवीजन से भी स्टार्ट कर सकते हैं. हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 यानी कि 5 से डिवाइड हो रहा है, ये है ना, डिवाइड में 5 है तो 1/5, डिवाइड में 4 हो 1/4, डिवाइड में 3 हो 1/3. सो 1/5 ऑफ 3m है तो थ्राइस m लिख सकते हैं या 3 टाइम्स m लिख सकते हैं. 1/5 ऑफ 3 टाइम्स m, टाइम्स क्यों, क्योंकि m के साथ 3 मल्टीप्लाइड है, 3 टाइम्स m इज इक्वल टू के लिए गिव्स लिख सकते हैं, गिव्स 6. सो इजी, राइट? या हम दूसरा स्टेटमेंट क्या बना सकते हैं, लाइक when or here I can write 3 times m when divided by 5 gives 6. When divided by 5 gives 6. ओके, सो आप इस तरह से अपने लैंग्वेज में स्टेटमेंट बना सकते हो. लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. In an isosceles triangle, vertex angle is twice either base angle. Form an equation. अच्छा, यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक हिंट भी दिया हुआ है, बट वो आपके बुक में है एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हिंट आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में भी दिया हो. सो ये आपको हिंट पहले से समझना है क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल की बात हो रही है. So triangle has a property that the sum of all the 3 angles of a triangle is equals to 180. And here we are talking about an isosceles triangle. Okay. So you know
that an isosceles triangle have two sides equal and two angles equal. These two sides, if you take these two sides as equal, then the angles opposite to these sides will be equal. Okay? So, क्वेश्चन समझते हैं पहले कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स मतलब टॉप कॉर्नर, ओके, या कोई भी एक एंगल, ये इसे भी वर्टेक्स एंगल कह सकते हैं, इसे भी वर्टेक्स एंगल कह सकते हैं, इसे भी वर्टेक्स एंगल कह सकते हैं. तो कोई एक वर्टेक्स एंगल जो है इज ट्वाइस ईदर बेस. ओके, बेस एंगल, तो बेस एंगल मतलब जिस पे ट्रायंगल खड़ा है, तो ये दोनों हो गए हमारे बेस एंगल. ओके, एंड दिस इज वर्टेक्स एंगल. ओके, सो वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, कितना है, 2 गुना है. ओके, वर्टेक्स एंगल अगर हम x लेते हैं, या यहाँ पे हमें वर्टेक्स एंगल की जानकारी है कि वो ट्वाइस है. किसका ट्वाइस है, ईदर बेस एंगल. ओके, तो यहाँ पे हम बेस एंगल को कुछ सपोज करेंगे क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमारे पास. नाउ ईदर बेस एंगल का क्या मतलब है, किसी भी एक बेस एंगल का 2 गुना है वर्टेक्स एंगल. इधर मतलब दोनों में से किसी भी एक. क्यों ऐसा लिखा है दोनों में से किसी भी एक, क्योंकि दोनों सेम है. तो यहां हम बेस एंगल को क्या मानेंगे, बेस एंगल विल बी x. तो अगर इसे x लेते हैं तो इसका 2 गुना होगा वर्टेक्स एंगल, यानी कि 2x हो जाएगा. और इसे x लेते हैं तो इसका भी 2 गुना, यानी कि ये 2x हो जाएगा. किसी भी तरह से किसी भी एक एंगल को लो, इस x को लो या इस x को लो, इन दोनों में से किसी एक का डबल है वर्टेक्स एंगल. सो दैट इज वाई ईदर वर्ड इज यूज्ड. ओके, सो वी हैव टू फॉर्म इक्वेशन. नाउ इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, किसके इक्वल करेंगे इन वैल्यूज को, इनके सम को. So we know that sum of all the angles of a triangle is equal to 180 degree. Angle sum property of a triangle. So vertex angle 2x, दोनों के दोनों base angle x and x, इनका sum 180 देगा. So 180 is known here and you will write according to angle sum property. Okay, I hope it is clear. Now let's come to next question. And here it is solve. जैसा अभी मैंने आपको बताया, you have to follow the reverse of BODMAS to solve. So first question is 20p by 3 is equal to 40. So you have to find p. वेरिएबल यहाँ p है, हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम 20 और 3 को अलग करने की कोशिश करेंगे p से. 20 मल्टीप्लाइड में है, 3 डिवाइड में है. हम दोनों को एक साथ अलग कर सकते हैं. कैसे, वी कैन राइट p इज इक्वल्स टू 40, और जैसे ही ये ट्रांसपोज होगा दूसरी साइड, इनका रोल रिवर्स हो जाएगा. जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आएगा, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो हियर वी विल राइट इनटू 3 by 20. 20 मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ये डिवाइड करेगा. 3 डिवाइड कर रहा था, अब ये मल्टीप्लाई करेगा. सो वैल्यू ऑफ p इज 2 into 3, that is equals to 6. Okay. Now next question is 2q plus 6 is equals to 12. Okay. नाउ यहाँ पे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो रहेगा सबसे पहले उसे सेपरेट करेंगे. सो वी विल राइट 2q इज इक्वल्स टू 12 minus 6. ओके, नाउ इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले. 2q इज इक्वल्स टू 6. नाउ अब 2 जो मल्टीप्लाइड है q के साथ उसे अलग करेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ q. तो 2 मल्टीप्लाइड है, जब ये ट्रांसपोज होगा ये डिवाइड करेगा. q is equal to 6 divided by 2 and the value of q will be equal to 3. So ये steps को भी आपको दिखाना है. You cannot directly write 3. And I request all of you please watch the full video. Okay.
as I have an important message towards the end. Okay, so please do watch full video and share it with your friends more and more, because they will also learn if they don't know this, so they will get benefited from this. Okay. And if you have any doubts, students, so please put your doubts in the comment section. I will try to solve your doubts too and provide you with a solution. Okay, now let's come to next question. Yeah, here it is. So this looks such a long question, but don't worry, we will solve it within a minute. Okay. So first you have to read one line. जैसे कि आप इस तरह के बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स जब भी देखते हो, आप पहली बार में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही पढ़ना. Like I am reading, people of Sundargram planted trees in the village garden. Village garden में सुंदरग्राम के लोगों ने trees plant किए. इससे कुछ भी मैथ्स का information हमें नहीं मिल रहा. Okay, so this is of no importance. Now, some of the trees were fruit trees. कुछ trees fruit trees हैं, मतलब यहाँ पे दो तरह के trees हैं. The number of non-fruit trees. अच्छा, यहाँ पे सम लिखा है, मतलब हमसे कुछ इंफॉर्मेशन छुपाई गई है. क्या छुपाया गया है? नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज. तो इसे हम मान लेंगे x. लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इज इक्वल्स टू x. ओके ना, अब हम दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं. The number of non-fruit trees were. तो फ्रूट ट्रीज का नंबर हमने मान लिया है x, और नॉन फ्रूट ट्रीज का नंबर दिया हुआ है. तो हम देखते हैं कितना दिया हुआ है. यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज. अब यहाँ मैं आपको बता दूँ, इस वर का मतलब है इज इक्वल टू. हमने लिख दिया इज इक्वल टू टू मोर. टू मोर का मतलब ऐड. कितना ऐड करना है? 2. ओके, 2 हमें ऐड करना है. किस में? 3 टाइम्स. 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना. 3 मल्टीप्लाइड. किस में 3 मल्टीप्लाइड? 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज. फ्रूट ट्रीज के 3 टाइम्स में. फ्रूट ट्रीज हमने माना है x. ओके, सो 2 प्लस 3x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस 2. ये है नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ से हमें नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज की संख्या हमने मान ली x. सेकेंड लाइन से हमें पता चला नॉन फ्रूट ट्रीज का नंबर, जो कि है 3 टाइम्स फ्रूट ट्रीज में 2 ज़्यादा. इन 2 लाइन से हमें ये इंफॉर्मेशन मिला. नाउ वी विल रीड द लास्ट लाइन. लास्ट लाइन क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज. फ्रूट ट्रीज की नंबर बताइए इफ नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड वाज 77. यानी हमें x बताना है. हमने फ्रूट ट्रीज x माना है, फ्रूट ट्रीज पूछा जा रहा है, तो हमें x फाइंड आउट करना है. इफ कंडीशन क्या है? अगर नॉन फ्रूट ट्रीज 77 है. यानी कि नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हैं वेरिएबल में? 3x प्लस 2 और नंबर में 77. मतलब ये दोनों तो नॉन फ्रूट ट्रीज की ही नंबर है ना, तो दोनों इक्वल होंगे. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेरिएबल के अकॉर्डिंग 3x प्लस 2 नॉन फ्रूट ट्रीज है और नंबर में कितने हैं? 77. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये x यानी कि फ्रूट ट्रीज की संख्या मिलेगी. लेट अस सॉल्व इट. 3x is equals to 77 minus 2. Okay, 3x is equals to 75. X is equals to 75 divided by 3. So
it will be 25. So number of fruit trees is 25. So value of x is 25. So this is the answer. I hope most of your concepts are clear from this. And yes, as I said, I have an important message. So students, you know maths, आपको maths पता है, but where do you do mistake? You do silly mistakes like addition mistake करते हो आप, multiplication mistake करते हो, then you leave question. जब आपको question paper मिलते हैं आप question को ध्यान से नहीं देखते हो और जो question आपको आता है उनको छोड़ देते हो. रफ फेयर किया कीजिए. Okay, so I will give some more important exam tips in the next session also. So this was all for today. Thank you so much, and please do like, share and subscribe.